यस स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन था व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. तो हियर डोंट रीड दिस whole research paper, just focus on this tab box, right? So what's according to this text, what is phonetics and phonology? Phonetics deals with measurable physical properties of speech sounds, right? Phonetics, they themselves, right? What he's saying that phonetics deals with measurable, means phonetics, through phonetics we measure the sound. कि अगर आप पी बोलते हो तो कितना निकलना है, उसके लिए आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट. तो स्पीच थेरेपिस्ट सजेस्ट दैट हाउ, छोटे बच्चे र को मेला मेला करते हैं तो वो बताते हैं कि हाउ टू स्पीक र इंस्टेड ऑफ ल, है ना. तो टंग कैसे रखना है, कितना मेजर, कितना ओपन करना है माउथ, दैट इज़ कॉल्ड मेजरेबल. Then physical properties of speech sounds themselves means physical property, that's a lips, right? Both teeth ridge, tongue, this is physical property, right? Such that precisely how the mouth produces certain sounds, right? P is different from B, right? So when you speak P, then you have to join the lips for P, and you have to fill the air in your mouth, then P will be produced. But when you speak B, so then you definitely have to join the lips. But difference between P and B, so B lower lip is somewhat, that's a out little bit, lower lip ka shape will be changed, right? So then B sound will be produced. So this study comes under phonetics, right? Acha, one more thing, that's a, the mouth produces certain sounds and the characteristics of the resulting sound waves. तो जब आप पूरी स्टडी कैसे P बनेगा और कैसे B बनेगा और कैसे D होगा, आप बोल के देखना जब मेरा ये सुनोगे तो. when you speak P, right? P, then you have to, हनुमान जी टाइप का मुंह आपको बनाना पड़ेगा. तो you have to fill the air in your mouth and join the lips, then P will be produced. when you speak B, तो then P and B, तो B में इतना टाइट लॉक नहीं होगा, और B जो है ये लोअर लिप का ज़्यादा इसमें रोल है. P एंड B, है ना. तो B में लोअर लिप का आउटसाइड पार्ट जो है वो थोड़ा सा लोअर लिप का वो बाहर आ जाएगा, दैट B एंड D. तो अब टंग को भी फोकस करो. इन केस ऑफ P तो आपकी टंग अंदर रहती है, राइट? एंड देन इन केस ऑफ B तो आपकी जो टंग है, टिप ऑफ टंग, ये लोअर टीथ, लोअर रिज में जाके फिक्स हो जाती है B. और व्हेन यू स्पीक D तो आपकी लोअर टिप ऑफ टंग जो है वो टर्न हो जाती है, इनसाइड टर्न हो जाती है. तो ये सारी स्टडी जो है, दैट्स अ पार्ट ऑफ फोनेटिक्स. Phonology, while phonology investigates the mental system for representing and processing speech sound within particular language. mental system work करता है. आप phonology को ये समझो कि phonology is somewhat mental system. मैंने बार बार इसी एग्जाम्पल को आप भी कोट करना कि when to a candidate comes for what we can say, counseling along with his or her younger sister, younger brother. So then faculty talks in different way. Why? Because she deals with the child, so that's a matter and tone and everything will be different, approach will be different to child. And as a candidate, suppose you have come for counseling, so teacher and the conversation between teacher and candidate will be different. So that is somewhat, that's a mental system. तो फोनोलॉजी डील्स विथ मेंटल सिस्टम. उसका माइंड तुरंत कहेगा कि ये बच्चा है तो अलग तरीके से बात, अलग टोन, कितना लेंदी करना है, ओके, है ना. तो दिस इज द एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग दैट व्हेन यू टॉक टू अ स्मॉल यंग बेबी, तो ओके ओके, ओ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल. बट एज अ कैंडिडेट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके ओके, व्हाट्स योर नेम, ओके, फ्रॉम विच स्कूल यू आर फ्रॉम, थोड़ा फॉर्मल रहेगा, थोड़ा टोन विल बी डिफरेंट. ये सारा दिस कम अंडर phonology, right? The two fields have increasingly overlapped in scope. हाँ, वो कह रहे हैं कि somewhat ये दोनों ही मतलब join है कहीं ना कहीं, and that's a two part of the same coin, ऐसा उनका कहना है.
For our purposes, the important point is that linguistics, whether they are called phoneticians or phonologists, right, have accumulated some basic observations about how the speech system of human language work. कैसे बनती है लैंग्वेज, क्या क्या फैक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पहले की जैसे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर दूसरा कौन कौन से ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, और कैसे टोन में उसको बोलना चाहिए, ये सारा होल स्टडी दैट इज़ फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स, राइट. एंड दीज principles have a good deal to do with physical properties of speech sounds in question. तो इसमें फिजिकल भी है और मेंटल भी है. आप इसको मोटे तौर पे ऐसे समझो, फिजिकल इज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, बहुत शॉर्ट में बोलूँ, और मेंटल इज दैट इज you have to understand as per the person, your tone, speech, choice of words, everything will be different. ये है फोनोलॉजी, राइट. चलिए, अब ये क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा आपको एक नोट्स यहाँ से मिलते हैं. आप इसको पूरा मत पढ़ना, मेरा सजेशन है. सिर्फ आप फोनेटिक्स फोनोलॉजी को समझने के लिए ये देखो. एक और ये है ना, फॉरगेट लेटर्स, वी आर टॉकिंग साउंड्स. मैंने शायद पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बोला, तो 26 letters are there, but you don't have to focus on 26 letters because letter does not have direct correspondence with the sound, है ना. लेटर कुछ और है, GH है, और GH के कॉम्बिनेशन से F बन गया, PH के कॉम्बिनेशन से F बन गया, श्योर SURE हो गया, और सिप में भी ऐसे आ रहा है, तो कन्फ्यूजन है. तो वो डायरेक्ट नहीं है, जो लेटर है उसका डायरेक्ट साउंड नहीं है. लेकिन आप याद रखो, तो इसलिए लेटर भूल जाओ. वो ये कह रहा है साउंड क्या प्रोड्यूस होती है, इसके लिए हमने सिंबल दे दिए एक तरह से. तो वो 44 सिंबल्स और 44 साउंड, ये उनका कहना है. इसको पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, मैं इसमें से फिर आपको अभी ये बता रही हूँ. IP सिंबल्स फॉर द बेसिक कॉन्सोनेंट्स साउंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश. अब ये आप इतना डीप में मत जाओ, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन. आप सिर्फ ये देखो कि ये IP सिंबल्स जो हैं जनरली कॉमन होते हैं. और उसमें मैं सबसे आपको ज़रूरी बता दूं कि जब आप S को फैला दोगे, स्ट्रिंग कर दोगे, तो ये S श बन जाता है इस तरह के शेप में. तो ये इट विल बी प्रोड्यूस एज श. शिप इसका एग्जाम्पल है. शिप, प्रेशर. अब देखो, प्रेशर में डबल S इज प्रोनाउंस एज श, है ना. और रैश में SH प्रोनाउंस एज श, और शिप में भी SH श. तो ये जो श है, ये क्या है. अच्छा चलो, मैं पहले यहाँ से बता देती हूँ. इसमें नए वर्ड्स, P जो है कॉमन है, T कॉमन है, K कॉमन है, B कॉमन है, D कॉमन है, G, F, V. अब ये जो दो थ वाले हैं, ये नए साउंड है आपके लिए. थिंक और दिस, है ना. थिंक, ऑथर और टीथ, ये पूरे जो थ जहाँ